होकर उसको ले Hello and welcome to I'm the Best Mom. I trust you all are keeping well and staying safe. I'm the Best Mom. Here we are committed to make your motherhood a joyful experience. We understand that in this journey, we need a lot of collective knowledge and advice, suggestion from our specialized doctors and experts. Cover Page Cover Story comes to you with a lot of answers to your difficult question. I welcome you all to the 46th episode of Cover Page Cover Story. And today's topic is why speech delay is increasing in children. Today, we have our guest of the day, Dr. Darshana Naik, in conversation with Dr. Anuj Rastogi. Dr. Darshana Naik did her MBBS MD Pediatric from BJ Medical College, Ahmedabad, then a fellowship in pediatric neurology at Hinduja Hospital, Mumbai, worked at BJ Wadia Hospital, Mumbai, diploma in developmental neurology at University of Kerala, neuropathology training at Nimans, followed by international fellowship at Great Ormond Street Hospital, London. Dr. Darshana Naik has the expertise in treating and managing children with general pediatric neurology, neuromuscular, neurometabolic genetics, cerebral palsy, Botox therapy, and many more. Presented papers in international platform and in India as well, with a lot of research projects in India and outside India. Presently, Dr. Naik is consulting pediatric neurology at Asian Child Neuro Clinic, Ahmedabad, and she runs the Child Development Center, Mastisk, at Ahmedabad, Gujarat. Today, we will be getting the perfect question for your concern, queries, and Dr. Anuj Rastogi, senior neonatal pediatrician, co-founder of I'm the Best Mom, social influencer, author, special focus on child growth and development, and always we reinforce on the vaccination and a lot of awareness on personal hygiene. This journey is going to give us a lot of insight for our betterment. Over to you, Dr. Anuj and Dr. Darshana. Thank you, Deepmani. I welcome Dr. Darshana on this platform to enhance our knowledge and knowledge of our parents. Dr. Darshana, my first question to you is, what is normal speech development? Okay, thank you, sir. And thank you, I'm the Best Mom team for inviting me for this session.
Speech development, if we say, it's not just the word which a child start to speak, it's not that, but the speech development start right from the infancy when the child is 3 to 4 months of the age. Is it in Hindi or English? Parents को कौन सा ठीक? हिंदी इंग्लिश में, हिंदी हाँ, इंग्लिश क्योंकि में। पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आई थिंक हिंदी ही ठीक रहेगा। हाँ। हाँ, तो बच्चा जब भी 1 साल से छोटा होता है तभी से उसका स्पीच डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और उसमें हम देखा जाए तो 3-4 महीने का बच्चा हो, उसका आई कांटेक्ट मदर से होता है। जब मम्मी उसके साथ बात करती है तब जो कू कू जैसे आवाज करता है, जिसको हम कूइंग बोलते हैं, वो फर्स्ट साइन होता है कि बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट शुरू होता है। उसके बाद 9 to 10 मंथ्स में हम देखा जाए तो बैबलिंग शुरू होता है, बाबा 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 करके बच्चा बात करता है, तो वो भी एक स्पीच डेवलपमेंट का साइन है। और 1.5 to 2 years में बच्चे का मीनिंगफुल वर्ड शुरू होता है, मामा दादा। सपोज मम्मी को देख के ही मामा बोलता है, पापा को देख के पापा बोलता है, वो फर्स्ट वर्ड बच्चे का होता है, जो 1.5 से 1.25 या 2 साल पे होता है। 2 साल के बाद वो मिक्स वर्ड शुरू कर देता है, जैसे मगज, कमर, ऐसे कुछ शब्द होते हैं वो शुरू करता है। और उसके बाद वो वर्ड को सेंटेंस में जोड़ना शुरू करता है। तो 2 वर्ड सेंटेंस जो होता है वो 2 से 2.5 साल के बीच में होता है। और 3 साल के आसपास का जो बच्चा होता है वो रेगुलर जो सेंटेंसेस डे टू डे जो यूज होते हैं वो यूज करना शुरू कर देता है। तो ये इन जनरल नॉर्मल डेवलपमेंट स्पीच का होता है। एक बीच में जार्गन स्पीच आती है, कुछ थोड़ा जार्गन स्पीच के बारे में बताइए। पेरेंट्स जी, मैंने इसलिए बोला कि जैसे मैंने बताया कि मीनिंगफुल मामा बाबा, मामा दादा पापा, कि दादा को देख के ही दादा बोलना, वो 1.5 to 2 years के आसपास शुरू हो जाता है। उससे पहले सपोज यदि मामा दादा बोलते, कई पेरेंट्स हमारे पास आते बोलते मामा दादा तो 9 महीने से ही बोल रहा है। तो जो मामा दादा 9 महीने पे बोल रहा है उसको जार्गन बोलते हैं, कि बच्चे को पता नहीं है कि मैं मामा बोल रहा हूँ उसका मीनिंग मम्मा होता है, पापा बोल रहा हूँ इसका मीनिंग पापा होता है, या कोई भी इनकॉम्प्रिहेंसिव साउंड जो बच्चा निकालता है उसको पेरेंट मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं कि ये स्पीच है, लेकिन वो स्पीच नहीं होती, उसको हम जार्गन बोलते हैं। तो 1.5 साल के आसपास जो भी वर्ड बच्चे बोलते हैं उसको जार्गन स्पीच बोलते हैं। उसके बाद उसमें से उसको पता चलता है कि दादा को दादा, ऐसे 2 वर्ड दादा के लिए यूज होते हैं, तो बच्चा मीनिंग से समझ के यूज करता है, वो मीनिंगफुल स्पीच है। उससे पहले जो होता है उसको जार्गन बोलते हैं। राइट। तो आपने बताया कि जो मीनिंगफुल स्पीच आने से पहले जार्गन स्पीच होती है, जो एक नॉन स्पेसिफिक होती है, और उसमें वो बहुत तेजी से बोलने की कोशिश भी करते हैं जिसको आप कॉम्प्रिहेंड करके नहीं समझ पाते हैं। और एक 2 साल का बच्चा तकरीबन 50 शब्द बोलने लगता है, और वो शब्द जरूरी नहीं ग्रामेटिकली ठीक हो। जैसे वो कह सकता है रीड बुक, बुक रीड, कुछ भी हो सकता है, या बुक को भी बुब्बू बोलता हो, बुक ना बोलता हो लेकिन बुब्बू बोलता हो, पानी को बुआ बोलता हो, दूध को दुद्धू बोलता हो, लेकिन मीनिंगफुल होता है। तो उसको और थोड़ा अपनी डिमांड को शो करने लगता है, पॉइंट आउट करने लगता है। और जब वो 3 साल के हो जाते हैं तो 1000 वर्ड्स बोलने लगते हैं और पूरा एक सेंटेंस बोलने लगते हैं। तो जब हम देखते हैं कि बच्चे में कहीं भी फॉल्टरिंग आ रही है तो वी शुड कॉन्टेक्ट टू द डॉक्टर। अब ऐसा क्या, किस एज पे पेरेंट्स को थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए कि उनके बच्चे में स्पीच डिले है? क्योंकि एक बड़ा कॉमन सिनेरियो ये है कि जिस घर में 2 बच्चे हैं तो पहले बड़ा बच्चा होगा तो छोटा बच्चा अक्सर देर से बोलता है, और स्पेशली अगर कॉम्बिनेशन लड़की और लड़के का है तो कई बार देखा गया कि बच्चे को मौका ही नहीं मिलता अपनी डिमांड करने का या जरूरत बताने का, तो उसके काम वैसे ही होते रहते हैं तो भी नहीं बोलता। तो ये कैसे, कब हमें सोचना है कि अब हमें डॉक्टर के पास जाना है? एग्जैक्टली। यदि बच्चा 1 साल से छोटा है और यदि वो कूइंग या बैबलिंग ना कर रहा हो तो हमको अलर्ट हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या स्पीच डिले है, लेकिन एक रेड फ्लैग है कि बैबलिंग या कूइंग 1 ईयर तक नहीं होता है, तो उनको बच्चे का हियरिंग जो है वो असेस करवाना चाहिए। और बिल्कुल मीनिंगफुल वर्ड यदि 2-2.25 साल तक बच्चा नहीं बोलता है, देन डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है बच्चे में, तो उनको हियरिंग असेसमेंट करना चाहिए या फिर एक्सपर्ट की एडवाइस लेनी चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे कम्युनिकेशन जेस्चर से कर लेते हैं, इशारों से कर लेते हैं, बिल्कुल, और बात को सुनते समझते भी बट बोल नहीं पाते। जी, उसमें क्या होता है कि उनका जो कॉग्निशन या अंडरस्टैंडिंग जो होती है उनकी परफेक्ट होती है। बच्चा इसीलिए नहीं बोलता कि घर वाले जो होते हैं उसके इशारों से समझ लेते हैं। तो ऐसा होता है तो हम उन लोगों को एडवाइस करते हैं कि आप लोग जब तक बच्चा वो चीज का नाम ना बोले आप उनको दो नहीं,
सपोज जब तक बुआ ना बोले पानी मत दो, जब तक टॉय का नाम ना दे या कोई भी उनकी रिक्वायरमेंट है वो इंडिकेट ना करे तब तक आप दो नहीं। और ऐसा आप मैक्सिमम 1 to 3 ईयर्स तक उसका वेटिंग दे सकते हो। 1 to 3 ईयर्स तक, 1 to 3 मंथ्स तक यदि ये करता है पेरेंट्स और उसके बाद भी सपोज बच्चा बोलता नहीं होता है तो फिर हमको इवेल्युएशन करना चाहिए। लेकिन 2 साल जो होती है सर, वो एक कट ऑफ एज होती है जिसमें बिल्कुल ही वर्ड ना हो। ये इवन हमने प्रोवोक नहीं किया हो बच्चे को तो भी 5 से 10 वर्ड तो बच्चा सीख ही जाता है। पूरा मतलब नॉर्मल हम चाहे उतना नहीं बोल पाता, लेकिन 5 to 10 वर्ड्स तो कंपलसरी होते ही है 2 सवा 2 साल के बच्चे में। यदि वो भी ना हो तो ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग है और इसमें इमीडिएटली उसका इंटरवेंशन या फिर असेसमेंट करना चाहिए एक्सपर्ट को दिखा के। तो एक बड़ा अच्छा प्रोवर्ब है पीडियाट्रिक्स में, 1 to walk, 2 to talk। मतलब 1 साल का बच्चा चलना चाहिए और 2 साल का बच्चा बोलना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर इसमें कहीं भी फॉल्टरिंग है, यू शुड सी इमीडिएटली टू योर चाइल्ड स्पेशलिस्ट। और फिर आप कॉमन कोल्ड और लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटेराइटिस उसकी इंतजार ना करें, आप उसकी वेलबींग के लिए भी डॉक्टर से मिलने जाएं तो यू विल हैव गुड एडवाइस एंड गुड असेसमेंट। क्योंकि जब आप हमारे पास बच्चे को बीमारी वाली हालत में लेके आते हो और उसके बाद ये सब डिस्कस करते हो तो ये चीजें मिस होती हैं। क्योंकि उस समय बच्चा इरिटेबल भी होता है और उसको उसकी जो उसे देखने के बाद जो फीलिंग्स आती हैं वो एक टॉक्सिक सिक लुकिंग चाइल्ड की आती हैं, तो आप उसमें ही एनग्रॉस्ड रह जाते हैं। तो वेल बेबी चेकअप के लिए जरूर जाएं। आप इस बात का इंतजार ना करें कि जब अगला कफ कोल्ड होगा या वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू इमीडिएटली गो टू द डॉक्टर इफ यू फील योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल एज ही शुड डू। क्योंकि सभी बच्चों के आसपास बच्चे होते हैं उनकी एज ग्रुप के, अगर वो उनकी एज ग्रुप के बच्चों के साथ उस डायरेक्शन में फ्लो में नहीं जा रहे हैं, इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड यू शुड सी द डॉक्टर। व्हाट आर द रीजंस ऑफ स्पीच डिले इन चिल्ड्रन व्हिच आर मोस्ट कॉमनली मिस्ड? मोस्ट कॉमन में तो पेरेंट्स को बिल्कुल ही पता चल जाता है कि चाइल्ड कंप्लीटली डेफ है या फिर बिल्कुल ही सुन नहीं पाता है। वो तो जनरली 6 महीने पे, मैक्सिमम 1 ईयर पे पेरेंट्स को पता ही चल जाता है कि हमने बुलाया, मोबाइल की रिंग हमने सुनाई या कुछ भी सुनाया तो बच्चा सुन नहीं रहा है। तो वो तो बहुत कॉमन है, पेरेंट्स को तुरंत पता चल जाता है। वो सामने से ही ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं, असेसमेंट करवा के वो आगे बढ़ जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन मेन जो कॉमन मिस्ड होता है वो है पार्शियल हियरिंग लॉस। जिस बच्चे को रिकरेंट कॉमन कोल्ड होता है, ऑटाइटिस, सपोज ईयर इन्फेक्शन होता है, ईयर में से पस निकलता है, उसका मेन कॉमन कॉज होता है कि बच्चे को सोते सोते फीडिंग कराना। बच्चे को जब मम्मी सोते सोते फीडिंग कराती है तो एक स्टाचिन ट्यूब नाम की एक नली होती है जो गले से कान तक जाती है। तो उसमें मिल्क जाने की वजह से बच्चे में रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, क्योंकि जो मिल्क होता है उसमें शुगर होता है तो उसमें बैक्टीरिया प्रोलिफरेट होते हैं। तो ये बार बार बच्चे को कान का इन्फेक्शन होता है। ऐसे बच्चों में पार्शियल हियरिंग लॉस होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जो मिस हो जाती है। इस मिस इसलिए होती है कि ये बच्चे जो होते हैं वो लाउड साउंड जो होते हैं सुन लेते हैं, जैसे कि मोबाइल की रिंग, तेजी से जोर से उसको बुलाया, या कोई चीज गिर गई हो या कोई भी हॉर्न बज रहा हो, ऐसी सारी चीजें वो सुन लेते हैं। लेकिन हम जो ह्यूमन इंटरेक्शन में हम उतना जोर से नहीं बोलते हैं, तो हमारा जो ह्यूमन जो पिच साउंड है जो 40 डेसिबल के आसपास होता है वो बच्चे नहीं सुन पाते। तो ये मोस्ट कॉमनली मिस रीजन होता है बच्चों में कि स्पीच डिले होने का। तो यदि आपको लगता है कि बच्चा सुन रहा है, सब कुछ बराबर है, फिर भी यदि 2 साल तक वो बच्चा फर्स्ट मीनिंगफुल वर्ड नहीं बोलता है तो उसका हियरिंग चेकअप करवाना अनिवार्य है और उसकी ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बच्चे को पार्शियल हियरिंग लॉस हो। सेकेंड कॉमन रीजन है ऑटिज्म। ऑटिज्म में माइल्ड ऑटिज्म होता है। जनरली तो ऑटिज्म 3 साल के बाद डायग्नोस होता है, लेकिन अर्ली साइंस ऑफ ऑटिज्म में यदि बच्चा आप उसको बुलाओ तो भी आपके सामने नहीं देखता है, मोबाइल की रिंग सुनाओ तो तुरंत देखेगा, लेकिन आप बुलाओगे तो नहीं सुनेगा। बच्चा इतना सोशल नहीं है, इंटरैक्टिव नहीं है, और ऐसा होता है तो वो ऑटिज्म हो सकता है। वो बच्चा दूसरे बच्चों के साथ खेलता नहीं है, अगर अकेला खेलना पसंद करता है और बच्चे की स्पीच नहीं है, तो ये कॉमन कॉज है जो बहुत कॉमनली मिस होता है, उसको अर्ली ऑटिज्म कहते हैं। तो ये दोनों चीज होती है वो सबसे ज्यादा पेरेंट्स में मिस होती है। जब तक हमारे पास वो पेरेंट्स आते हैं वो बच्चा ऑलरेडी डेफनेस में, पार्शियल में या फिर ऑटिज्म में वो अंदर जा चुका होता है, तो ये मिस होते हैं। राइट। तो आपने बताया कि इसमें जो कॉमन कोल्ड के बाद अक्सर बच्चों के कान के अंदर पानी आ जाता है और जिसकी वजह से सुन नहीं पाते। और मैंने देखा बहुत सारी बार जब हम पेरेंट्स से पूछते हैं कि इसको सुनाई देता है तो वो एकदम कहते हैं इसको सुनाई देता है।
देखिए जब हम अपनी क्लिनिक पे चेक करते हैं, बिकॉज बिना क्लिनिकल चेकिंग करते हैं, तो मैं दो तरीके से करता हूँ। मेरा स्टाफ बच्चे के पीछे से उसके नाम से, जिस नाम से वो जाना जाता है उस नाम से उसको आवाज देते हैं जोर से, लाइक नन्हे। और अगर वो बच्चा उस तरफ मूव करता है, अपनी आईज या अपनी गर्दन टर्न करता है, तो हम सोचते हैं इसको लो पिच साउंड सुनाई दे रही है। और हाई पिच के लिए हम सीटी बजा के ऐसे करके पीछे से सुनते हैं और बच्चे को देखते हैं कि वो बच्चा कितना उसको डिस्ट्रैक्ट हो रहा है उस साउंड से। मोस्टली पेरेंट्स का क्या होता है, पेरेंट्स को कहेंगे आ चल बाहर चले, जेस्चर भी शो करते हैं, हाथ भी उठा देते हैं। तो ये ध्यान रखिए, जो आदमी कम सुनता है ना, उसे मूवमेंट बहुत अच्छे से परसीव होते हैं। एक आदमी जो नॉर्मल सुनता है और एक आदमी जो कम सुनता है, वो मूवमेंट के लिए कुदरती उसकी वायरिंग ब्रेन की ऐसी हो जाती है, मूवमेंट का जो थोड़ा सा भी आर्टिफैक्ट्स को वो एकदम रिएक्ट करता है। तो जो आपके जेस्चर हैं वो सारी जो गेम को चेंज कर देते हैं। आप सिर्फ हाथ दिखा के नहीं जज कर सकते। आप जब भी जज करें बिल्कुल स्टिल करके सिर्फ मुंह चलाएं या उसको पीछे से आवाज दें। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप जल्दी पिकअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप बहुत महीने सी बात में गुजार देते हैं, किसी सुनाई तो देता है। जी बिल्कुल जी। And what could it be the reason if a child who had a speech regressed? क्योंकि रिग्रेशन आजकल बहुत बहुत कॉमन हो गया, स्पेशली लॉकडाउन के बाद आपने भी देखा होगा बहुत ज्यादा रिग्रेशन। जी बिल्कुल बिल्कुल। रिग्रेशन से मेरा मतलब है, रिग्रेशन से मेरा मतलब है जो एक चीज बच्चे ने अचीव कर ली, मान लो कोई एक सेंटेंस बोलने लगा या एक एक्टिविटी करने लगा और वो उसने वो एक्टिविटी करनी छोड़ दी या वो एक्टिविटी भूल गया, इसको रिग्रेशन कहते हैं। मैम प्लीज। या उसमें पहले हमारे लॉकडाउन से पहले क्या होता था कि हमारे जो एनआरआई पेशेंट थे, यूके यूएस वाले, वो जो बच्चे आते थे स्पीच डिले के साथ, उसमें हमको ये चीज देखने को मिलती थी कि वो बोलते हैं कि पहले 1-1.5 साल का था तो मामा दादा बोलना सीख गया था, सब कुछ कर रहा था, फिर धीरे धीरे वो अपनी दुनिया में खो गया। ये अपनी दुनिया में खो गया या अपनी मस्ती में रहता है, दैट इज द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट अर्ली सिम्टम ऑफ ऑटिज्म। आप पेरेंट्स को पूछोगे, यदि आपको डाउट है और आप पेरेंट्स को पूछोगे तो हमेशा वो हाँ बोलेंगे कि आपको लगता है कि आपका बच्चा अपनी दुनिया में खोया रहता है, अपनी मस्ती में रहता है, तो बोलेंगे हाँ, उसको जरूरत होती है तभी हमारे पास आता है, वरना वो अपनी मस्ती में रहता है। तो ये शुरू हो जाता है 1.5 साल के आसपास ऑटिस्टिक बच्चों में। जो पहले इंटरेक्शन करते थे, पहले बोलते थे, पूरी परफेक्ट स्पीच नहीं होती है उनकी रेगुलर बच्चों के जैसी, लेकिन थोड़ा बहुत वो बोलना शुरू कर देते हैं और उसके बाद उसका रिग्रेशन होता है, वो फर्स्ट साइन ऑफ ऑटिज्म होता है। और ऑटिज्म के सपोज हम 10 बच्चे लेते हैं, उसमें से 8 बच्चों में ये समस्या पाई जाती है, जिसमें ऐसा है कि बच्चा पहले तो बहुत अच्छा बोलता था लेकिन पहले भूल गया और हमने उसका हियरिंग चेक करवा लिया, ईएनटी डॉक्टर को बता दिया, हमारे पीडियाट्रिशियन सबको बता दिया, लेकिन उसका सुनना परफेक्ट है लेकिन फिर भी बच्चा बोल नहीं रहा है। तो ये स्पीच डिले जो होते हैं वो हमारे तो ऐसा है कि 10 में से 3 बच्चे जो होते हैं, 3 से 4 बच्चे, वो ईएनटी डॉक्टर्स जो होते हैं वो हमको रेफर करते हैं कि हाँ, ये बच्चा स्पीच डिले से की वजह से हमारे पास आया है, हमारा हियरिंग असेसमेंट सब कुछ नॉर्मल है, अब आप देखो कि बच्चे को कुछ और है कि नहीं, और हम जब चेक करते हैं तो उसमें ऑटिज्म निकलता है। तो ये रिग्रेशन ऑफ स्पीच इज वन ऑफ द साइन ऑफ अर्ली ऑटिज्म, और उसमें बच्चा अपनी मस्ती में खोया रहता है, पहले जो बोलता है वो भी भूल जाता है। ऐसा अक्सर ये भी देखा गया है रिग्रेशन के समय, जब बच्चा एक नई एक्टिविटी जो एक एक्टिविटी में उसे मास्टरी हुई और नई एक्टिविटी को सीखता है, तो कई बार वो पुरानी एक्टिविटी को कुछ समय के लिए भूल जाता है। जैसे अक्सर टॉयलेट ट्रेनिंग के समय बच्चे कुछ चीजें भूल जाते हैं, तो इसके लिए भी हम 1 से 2 महीना वेट कर सकते हैं अगर बच्चे की एक्टिविटी वापस नहीं आ रही। और इस दौरान हमें उसे एनकरेज करना चाहिए। मैं बार बार सब पेरेंट्स से कहता हूँ, तारीफ सबको अच्छी लगती है, मुझे भी अपनी लगती है अच्छी, आपके बच्चे को भी अपनी अच्छी लगती है, तो आप उसको जो भी वो कर रहा है उसको एनकरेज करिए, उसकी तारीफ करिए और एक सच्चे मन से प्रेस कीजिए, तो बच्चे बेटर होते चले जाते हैं। अगर आपका बच्चा फिर भी रिग्रेशन में ही है, 1-2 महीने बीत गए हैं, तो जरूर आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। What should be done if parents feel child is able to hear mobile rings and loud sound but not speaking? ये मैंने अभी बताया, वो उसी का एक रिपीटेशन जैसा होगा, बार बार इसीलिए हम कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत मिस होता है और जब हमारे पास आते हैं तब बहुत देर हो जाती है। तो बच्चा जब मोबाइल रिंग को सुनता है और उनकी साउंड को नहीं सुनता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है और इम्पोर्टेंट साइन है ऑटिज्म की।
तो यदि पेरेंट्स को लगता है कि मोबाइल तो अब दूसरे रूम में भी पड़ा होगा ना, बच्चा लेके आ जाएगा, उसके पापा आएंगे, उसकी बाइक का हॉर्न भी सुनाई देगा, तुरंत जाएगा, लेकिन हमारे बाजू में बैठा है, खेल रहा है, और हम उसको नाम से बुलाएंगे तो वो हमारे सामने नहीं देखेगा, तो वो भी एक साइन ऑफ ऑटिज्म है। तो ये सारे रेड फ्लैग्स है जो हमको ध्यान में रखने चाहिए। यदि ऐसा है हमारे बच्चे के साथ तो उसको एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। एक बात बार बार आ रही है हमारी डिस्कशन में हियरिंग को लेके, तो क्या हर बच्चे को पैदा होने के बाद हियरिंग टेस्ट होना जरूरी है? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। सपोज नॉर्मल डिलीवरी है, बच्चा तुरंत रोया हुआ है, प्रेगनेंसी में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है मम्मी को, सपोज कि हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज होता है, ब्लीडिंग होती है, या फिर पानी गिर गया होता है, ऐसी कोई प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और बच्चा नॉर्मल डिलीवरी से है, तुरंत रोया हुआ है, तो जनरल बच्चों में ऐसी कोई जरूरी नहीं होता है कि हम हियरिंग असेसमेंट करें। लेकिन बच्चे के साथ सपोज बात करते हैं, और सपोज न्यूबॉर्न भी है और सो रहा है, और जोर से कोई दरवाजा को धक्का दिया या कोई भी बर्तन गिर गया, तो जनरली चौंक के जग जाते हैं बच्चे। तो 3 महीने तक यदि वो स्टार्टल रिस्पॉन्स हम बोलते हैं कि जो जोर से आवाज आने की वजह से बच्चे चौंक जाते हैं, तो बिल्कुल ही ना हो। हमारे कैरेक्टरिस्टिक कई पेरेंट्स आते हैं कि भाई ये हमने देखा हुआ है, 3-4 महीने का बच्चा होता है, सब कुछ ओके होता है, लेकिन जब भी जोर से आवाज आती है, जो चौंक के जगना चाहिए वो नहीं जग रहा है। ऐसे हमारे 6-12 महीने में 2-3 केसेस आ जाते हैं जिसमें बच्चे को अर्ली हियरिंग डेफिसिट हमको डायग्नोस होती है, तो उस केस में हम लोग करवाते हैं। बाकी नॉर्मल डिलीवरी और सब कुछ ओके है तो नहीं करवाना चाहिए। लेकिन यदि बच्चा प्रीटर्म है, यदि बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं है, यदि बच्चे को जन्म के बाद मेनिंजाइटिस हुआ है, यदि कोई भी प्रॉब्लम की वजह, सपोज नियोनेटल जॉन्डिस हुआ है, नियोनेटल जॉन्डिस बहुत कॉमन कॉज है बच्चे में, क्योंकि उसमें जॉन्डिस की वजह से उसकी जो सुनने वाली नस होती है जो डैमेज हो जाती है, जिसको हम कर्निक्टरस भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें यदि बच्चे में है तो वो बच्चे को डिस्चार्ज के टाइम पे OAE करके टेस्ट होता है, वो करना चाहिए। और उसमें यदि बच्चा फेल दिखाता है तो हमको हर 2 हफ्ते पे 3 बार तक करना चाहिए। और यदि 3 बार तक वो OAE में फेल होता है तो बेरा करके रिपोर्ट होता है, जो अल्टीमेट हियरिंग वो बच्चे की असेस करता है, वो करना चाहिए। और उसमें यदि पकड़ में आता है कि बच्चे को हियरिंग लॉस है तो उसको एज सुन एज पॉसिबल हमको ENT रेफर करना चाहिए। तो आपने बताया जो हाई रिस्क इन्फेंट है और खासकर जिन्हें पीलिया रहा हुआ है, क्योंकि जिन बच्चों का पीलिया की वजह से खून चेंज हुआ है, या जिनका पीलिया 25 या 30 की रेंज में पहुंच गया, भले ही दिमाग को उस समय कुछ ने डैमेज नहीं करा, उन बच्चों के अंदर हियरिंग चेक होना चाहिए। जैसा मैंने बताया, OAE टेस्ट होना चाहिए, जो कि एक सिंपल टेस्ट है। एक मशीन को कान पे लगाया जाता है, उसमें पास और फेल लिख के आ जाता है। उस टेस्ट से अगर आपके बच्चे को फेल शो कर रहा है तो उसको आप 2 हफ्ते बाद दोबारा कराओ, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा कराओ। अगर वो फेल परसिस्ट करता है तो फिर आपको बेरा टेस्ट कराना। बट मैं ये कहूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जिनको जो हाई रिस्क हैं, जिनमें कोई पास भी है, तो उनके अंदर भी बेरा करा लेना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक स्क्रीनिंग है वो सिर्फ कंडक्टेड हियरिंग लॉस चेक करती है, सेंसरी न्यूरल मिस कर देती है। तो जो बच्चे हाई रिस्क इन्फेंट रहे हैं, जिनको बहुत सारी एंटीबायोटिक्स चली हैं, जैसे ये एक एंटीबायोटिक होती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड या एमिकासिन का इंजेक्शन, जो बहुत फ्रीक्वेंटली सेप्सिस को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, वो कान की नस को सुखा सकता है या उसको डैमेज कर सकता है। तो अगर ये हम टाइम से कंट्रोल कर लेते हैं तो उसका जो एक उसकी एल्गोरिथम है, उसका जो ट्रीटमेंट का तरीका है, वो अडॉप्ट कर लेते हैं, तो बच्चे की स्पीच डेवलप हो जाती है। अदरवाइज अगर इस बात को हम बहुत लेट कर देते हैं, ये बात हमें डेफनेस की 1 से 2 साल बाद पता चलती है, तो फिर जो करेक्टिव मेजर्स करने के बाद भी वो बात उस बच्चे के अंदर नहीं आ पाती है। इन जनरल हमारे कंट्री के अंदर जो हियरिंग प्रॉब्लम है, जो डेफनेस है, वो 1 आउट ऑफ 2000 के करीब है। मतलब 2000 बच्चों में से 1 को डेफनेस है, और पार्शियल डेफनेस करीब 1 आउट ऑफ 1000 है। तो इस तरह से ये डाटा है कंट्री का, जो पूरा नहीं है। तो ये चीज किसी के साथ भी हो सकती है। अगर हम अलर्ट हैं और वेलबींग चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ये बातें डिस्कस करने जाते हैं, तो ये चीजें निकल के बहुत जल्दी हमारे सामने अपीयर हो जाती है। दीपमान जी, आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं पेरेंट्स के, और मैम से पूछना चाहेंगे? So there are few questions in the Q&A section. Dr. Darshana, if you can also have a look on this Q. Yes, sure. So this question is from Anita Sharma. She's asking, my daughter is 7 years old. She gets stammer while speaking. Kindly suggest the treatment.
ओके, स्टैमरिंग अगेन एक बहुत कॉमन है नॉर्मल बच्चों में, और वो जनरली शुरू होता है 4-5 इयर्स के बाद। 4-5 इयर्स के बाद जब भी बच्चा एक्साइटेड होता है या फिर अपसेट होता है या फिर जल्दी बोलने की कोशिश करता है, या फिर उसके आसपास में कोई ऐसा बच्चा है जो स्टैमर करता हो और उसकी नकल करता है स्कूल में या आस पड़ोस में, तो उसमें स्टैमरिंग शुरू होता है। और स्टैमरिंग में ऐसा है कि यदि शुरू से ही हमने उसकी ट्रीटमेंट करके उसको क्लियर नहीं करा तो परमानेंटली हकलापन में चेंज हो सकता है, परमानेंट स्टैमरिंग हो सकता है, जैसे हम बड़ों में देखते हैं कभी कभी। और जो सपोज यदि वो बच्चा 10 से 15 साल का हो गया और उसको स्टैमरिंग हमने करेक्ट नहीं किया तो परमानेंट होने का चांस बहुत ज्यादा है। हमारे पास 15 साल के बाद जो आते हैं उसमें हम पार्टली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं कर सकते। तो इसमें अर्लीस्ट उनको स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, बोलने की टेक्निक सिखाई जाती है, और वो खासकर बच्चे को खुद करनी पड़ती है, पेरेंट्स को नहीं। तो हम लोग बच्चे का सेशन लेते हैं और उसमें हम उनको बताते हैं कि किस तरह से ओमकार की टेक्निक होती है, सांस रोकने की टेक्निक होती है, अनुलोम विलोम भी होता है, हमारे योगा भी उसमें इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। उसकी वजह से क्या होता है, जब बच्चा बोलने जाए तो वो सांस लेके बोले, ब्रीदिंग उनका थोड़ा प्रोलॉन्ग हो, ताकि वो बोलने जाए तब स्टैमर ना करे। स्टैमर मेनली होता है जल्दी बोलने से। यदि एक अचानक से घबराहट में हम बोलना चाहे तो हम भी कभी कभी स्टैमर करते हैं। तो स्टैमरिंग इज अ पार्ट कि हम लोग एक्साइटेड होके बोलते हैं या फिर जल्दी बोलने जाते हैं। तो इन लोगों में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उनका ब्रीदिंग करके उसकी जो रेट ऑफ स्पीच जो होती है वो स्लो करने से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, यदि बच्चा 10-12 साल के अंदर है तो ये स्टैमरिंग जो होता है वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल होता है बच्चों में। और ये बिहेवियर और एनवायरनमेंट की वजह से बहुत ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ये करेक्टेबल है। ये मैं पेरेंट्स को इस तरह से समझाता हूँ कि जब बच्चे जो किस साइकिल की चेन उतरती है, जो साइकिल बहुत तेज चलाई जाती है उसकी चेन उतरने लगती है। तो अगर आप अपने घर में अपने आपस में बहुत स्लो स्लो बात करेंगे तो ऐसा बच्चा आपको देख के अपने आप को करेक्ट कर लेता है। क्योंकि हमारे ब्रेन की ब्यूटी ये है कि हम बहुत जल्दी लर्न करते हैं। तो मैं सब पेरेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि आप जब अगर आपका बच्चा स्टैमर कर रहा है तो आप कुछ समय अपने घर में बहुत स्लो स्लो बात कीजिए, बहुत धीमे बात कीजिए, और उससे बच्चा भी थोड़ा धीमे बोलने लगेगा तो वो अपने आप को करेक्ट करने लगेगा, उसको टाइम मिल जाएगा अपने आप को संवारने का, और फिर वो ठीक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो ये एक मेरी टिप थी स्टैमरिंग के बारे में। दीपमान, कोई और क्वेश्चन है आपका? Yeah, so the second question is from Mr. Satinder Singh. He's asking, my son is 13-year-old, is not able to speak clearly either in Hindi or English. Sometimes he eat out some of the word while speaking and reading. Please give a suggestion. ओके, इसको टिपिकल आर्टिकुलेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। इसमें क्या अंडरस्टैंडिंग होती है, वोकेबुलरी भी होती है बच्चे की, लेकिन जब बोलने जाते हैं तो उनके कुछ कुछ वर्ड जो होते हैं वो अनक्लियर रह जाते हैं बचपन से ही। तो जनरली पेरेंट्स को क्या होता है कि अभी तो बच्चा है सीख लेगा, बच्चा है सीख लेगा, उसमें वो लोग इग्नोर करते हैं, क्योंकि इन जनरल उनका स्पीच ओके होता है, कम्युनिकेशन आ जाता है, सब कुछ क्लियर होता है कुछ कुछ वर्ड को छोड़ के। तो पेरेंट्स मोस्टली क्या होता है, इग्नोर करते हैं। तो इसमें क्या होता है, आर्टिकुलेशन की एक्सरसाइज होती है, उसमें एक एक वर्ड जो अनक्लियर है उसको पकड़ के वो ठीक करवाते हैं। उसमें टंग, पैलेट, अपर पैलेट, डीप पैलेट से लेके सब कुछ पूरा ओरोमोटर एक्सरसाइज होता है, जिसको ओरोमोटर आर्टिकुलेशन एक्सरसाइज बोलते हैं। और दूसरा इश्यू होता है सेंसरी प्रॉब्लम, जो छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है। ये चाइल्ड में तो मुझे आर्टिकुलेशन ही लग रहा है। तो वो ओरोमोटर सेंसरी और ओरोमोटर आर्टिकुलेशन एक्सरसाइज करके उसको क्लियर कर सकते हैं। और ये बच्चा ऑलरेडी बड़ा हो गया तो उनको अर्जेंटली करवाना चाहिए। 15 साल के बाद जनरली कंप्लीटली ठीक होना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है, तो थेरेपी से डेफिनेटली ठीक हो सकता है। Thank you, Dr. Darshana. I'm so thankful even to the parents who are putting this question. This can be a benefit for many. At times we don't ask the question and we lose a lot of time. With this, let me go to another question from Manthiram Sankaran. Is asking, my kid is 4.5-year-old. She's not able to communicate. I think this requires a little more clarity on the question itself. Still, ma'am, if you want to answer it. Yes, 4.5 and not communicating means communication has two ways. एक तो social eye contact का behavior related होता है, दूसरा speech होता है. Communication has two components.
तो स्पीच नहीं है या कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इट्स अ टोटल टू डिफरेंट थिंग। लेकिन इन जनरल हम बोलते हैं कि यदि 4.5 years का है और बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता, इट इज अगेन अ रेड फ्लैग। उनको इमीडिएटली बच्चे का हियरिंग और स्पीच दोनों असेस करना चाहिए। और थर्ड असेसमेंट इज कॉग्निशन, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग। कभी कभी क्या होता है, बच्चे का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा स्लो होता है, 10-20%, ज्यादा नहीं। तो क्या बच्चा रूटीन सब कुछ कर लेता है, चलना वलना सब क्लियर हो जाता है, अपना एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग भी कर लेता है, टॉयलेट ट्रेनिंग सब हो जाता है, लेकिन बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, क्योंकि स्पीच जो है वो हमारे ब्रेन का हायर फंक्शन है। वो तभी आता है जब हमारा IQ परफेक्टली नॉर्मल हो। तो सपोज थोड़ा सा भी बच्चे में डिले होता है तो वो बच्चे का स्पीच डिले होना बहुत कॉमन है। तो 4.5 year पे कम्युनिकेशन ना होना, इसका मतलब इस बच्चे का हियरिंग, स्पीच और कॉग्निशन तीनों असेसमेंट होने चाहिए, और उस हिसाब से उसको थेरेपी देनी चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम जो एज होती है नॉर्मल स्पीच लाने की वो 5 to 7 years होती है। इफ 7 years के बाद भी बच्चा बोल नहीं पाता है और उसमें डिले है, तो हम कंप्लीटली नॉर्मल बच्चे को नहीं बना सकते, चाहे हम कितनी भी थेरेपी दे दें। तो इसको अर्जेंटली एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत है। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक टंग टाई के लिए जितनी भी पेरेंट्स आते हैं, दे ऑलवेज टॉक ऑफ टंग टाई। यस। व्हाट इज योर कॉल ऑन दिस टंग टाई एंड या हेलोपैथी? हाँ, तो टंग टाई में हम जनरली ऐसा बोलते हैं कि यदि बच्चे का स्पीच नॉर्मल है, जनरली क्या होता है कि वो लोग टंग टाई को ब्लेम करते हैं, टंग टाई का ऑपरेशन भी करवा लेते हैं और उसके बाद भी बच्चा बोलता नहीं होता है। जिनमें ये ऑटिज्म या फिर जेन्युइन पार्शियल हियरिंग लॉस की वजह से स्पीच डिले है, वो टंग टाई स्पीच डिले में इनकॉर्पोरेट बहुत कम बच्चों में पाया जाता है, जिसमें बहुत थिक पूरा बैंड होता है। जनरल हम देखा जाए जो सिंपल सा एक फ्रेन्युलम जैसा होता है, वो टंग टाई स्पीच डिले में कंट्रीब्यूट नहीं करती है। तो जब भी टंग टाई आपको लगे बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट कैसा है वो देख लो, नहीं है तो उसको थेरेपी दे दो। थेरेपी को रिस्पॉन्ड नहीं होता है तो ही हमको टंग टाई को रिलीज करना चाहिए। और सपोज ये बहुत थिक होता है, बिल्कुल ही चिपकी हुई होती, टंग बाहर नहीं कर पाता है, पहले तो आप वो करवा के देख लो कि यहाँ तक उसकी टंग आती है कि नहीं। वो प्रोट्रूड नहीं हो पाता है और होठ से आगे टंग आ ही नहीं रही है, तो फिर उसको टंग टाई ऑपरेट करवाना चाहिए। अदरवाइज पहले थेरेपी दे दो, उससे नहीं होता है तो ही उसको टंग टाई का ऑपरेट करना चाहिए। टंग टाई के प्रति गांवों में, शहर में बहुत ज्यादा अवेयरनेस है एंड एवरीबॉडी टॉक्स ऑफ द टंग टाई, और वो बार बार टंग टाई की बात जरूर करेंगे। जी तो जिन जी। बच्चों को वाकई सिग्निफिकेंट टंग टाई है, तो उन बच्चों को दूध पीने में भी परेशानी होती है, वो ब्रेस्ट फीडिंग भी नहीं कर पाते और बॉटल फीडिंग करने में भी प्रॉब्लम बिल्कुल होती है, जीभ बिल्कुल। चिपकी रहती है। और जो हल्की वाली जो एक जैसे झिल्ली सी होती है जीभ के नीचे, वो सभी की छोटी या बड़ी होती है, और वो एक ए वस्कुलर स्ट्रक्चर है। ए वस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब है जिसकी कोई ग्रोथ नहीं होती है। जी जैसे कि हम लंबाई में तो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और जीभ जो है हमारी नाक की तरफ सामने को बढ़ती है, तो वो जो झिल्ली है वो वहीं अपनी जगह रह जाती है और टंग आगे चली जाती है। तो मोस्टली जो टंग टाई है वो दे आर इनसिग्निफिकेंट एंड दे डू नॉट रिक्वायर एनी कंसिडरेशन। तो जैसा जी कि आपने बताया कि पहले आप और मेजर देखिए तब टंग टाई रिलीज करानी, ठीक है, बच्चा बट यदि पेरेंट्स जीभ को बाहर निकाल पाता है तो फिर वो टंग टाई की वजह से स्पीच डिले होने का चांस नहीं। बहुत कम है। आप एक बार देख लो कि टंग बाहर निकालता है तो फिर आप टंग टाई का टेंशन मत करो। बच्चों की जो दादियां हैं उनका सबका मेन कंसर्न टंग टाई रहता है, और वो बहुत जल्दी अगर एक शब्द इधर उधर भी है तो वो और इवोल्यूशन नहीं चाहते, हियरिंग चेकअप नहीं चाहते। दे वांट ये टंग टाई है, डॉक्टर टंग टाई के हैं और इसे रिलीज कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, सो दिस इज अ एब्सोल्युटली। मिथ, दिस इज अ बिग मिथ। एंड आपने अभी सुनी ली है हमारी बातें, और टंग टाई को सबसे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट कॉज है स्पीच डिले का। दीपमान, और कोई क्वेश्चन है आपके पास? Yeah, absolutely. A lot of question to Dr. Darshana ma'am. Now, Ekta ma'am is asking, Doctor, my child is autistic. We started early intervention and OT to calm hyperactivity and sensory issue. What should be done for his speech? We are working on blowing out, but he is not able to blow and blow in sucking. Speaks his own language. What can be done to make him speak something? And there is a continuation. Yeah, I think the same repetition. Yeah. Yes. या तो इसमें क्या होता है कि ऑटिज्म की वजह से जो स्पीच डिले होता है, तो उनको पहले जानना बहुत जरूरी है कि ऑटिज्म में जो स्पीच का इम्प्रूवमेंट है उसमें उल्टा है। मेन कॉमन रीजन होता है, कॉमन कंप्लेंट पेरेंट्स की होती है कि स्पीच डिले है।
लेकिन यदि हम ऑटिज्म की ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, थेरेपी शुरू करते हैं, तो स्पीच का जो इम्प्रूवमेंट है सबसे लास्ट आता है। तो पेरेंट्स को ये जानना बहुत जरूरी होता है कि स्पीच ये बच्चे में जो है वो सबसे लास्ट आएगी, और उसमें स्टेप वाइज जाना पड़ता है। एबीए थेरेपी के साथ स्पीच थेरेपी करनी पड़ती है, जिसमें ओरोमोटर सेंसरी थेरेपी होती है, फिर सकिंग क्लियर करते हैं, फिर बच्चे का ब्लोइंग क्लियर करते हैं, फिर डिग्लूटिशन क्लियर करते हैं। तो आर्टिकुलेशन क्लियर होने तक एबी की वजह से बच्चे का जो सोशल कम्युनिकेशन है वो क्लियर होता है। कॉग्निशन जो होता है, सपोज ये लो फंक्शन ऑटिज्म है तो उसमें कॉग्निशन थेरेपी भी करनी पड़ती है, तो वो भी क्लियर करते हैं। उसके बाद हम आगे बच्चे को वर्ड सिखाते हैं, वोवेल के बाद वर्ड सिखाते हैं। ऐसे स्टेप वाइज पूरा प्रोसेस होता है जो कम से कम 1 से 2 साल चलता है, और उसमें बहुत ही पेशेंस से पेरेंट्स को भी होम प्लान करना पड़ता है और उनको एक्सपर्ट के साथ भी जुड़े रहना पड़ता है, तब जाके 1 to 2 years में ये बच्चे को इम्प्रूवमेंट हो सकता है। एक बड़ा अच्छा वर्ड इसके बीच में आया इस क्वेश्चन आंसर के, अर्ली इंटरवेंशन। आजकल ये बहुत वर्ड सुना जाता है। अर्ली इंटरवेंशन एक्चुअली है क्या? व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्ली इंटरवेंशन, और इसमें करते क्या है? इट इज सम, या बताइए। जी सर, अर्ली इंटरवेंशन में क्या है, कोई भी चीज में हम सिंपल, अभी अपनी स्पीच की या ऑटिज्म की बात ना करें या बच्चों की बात ना करें, कोई भी सिंपल वर्ड हम अर्ली इंटरवेंशन में क्या होता है कि कोई भी चीज होने से पहले या फिर होते होते ही हम उसको निदान कर ले और उसको आगे बढ़ने से रोके। सिंपल भाषा में इसी को अर्ली इंटरवेंशन कहते हैं। अब हम स्पीच या ऑटिज्म पे आते हैं, तो सबसे पहले तो बच्चा लेस देन 3 years का होता है, उसमें हमको डायग्नोस हो जाना चाहिए कि इसको प्रॉब्लम हो सकता है। तो सपोज बच्चे को पेरिनेटल प्रॉब्लम है, जन्म के बाद हमने जैसे डिस्कस किया, पीलिया हुआ है या फिर जॉन्डिस, ये मेनिंजाइटिस हुआ है, शुगर कम हो गया, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम हुआ है बच्चे को, तो वो बच्चे को हम न्यूरो डेवलपमेंटल फॉलोअप में रखते हैं। हमारे एनएनएफ या नेशनल नियोनाटोलॉजी फोरम में एक प्रोटोकॉल बने हुए होते हैं, जो एनआईसीयू में या फिर कांच की पेटी में जो रखे हुए नवजात शिशु है उनको कैसे फॉलो किया जाए, ताकि हम वो बच्चे को अर्ली डायग्नोस कर पाए किसी भी प्रॉब्लम में। उसके पूरे प्रोटोकॉल बने हुए, जिसको एनएनएफ न्यूरो डेवलपमेंटल फॉलोअप प्रोटोकॉल है, वो नेट पे फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी पेरेंट्स उसको जाके वो देख सकता है। उसमें 0, 1, 2, 3, फिर 6, 9, 12 months और फिर एवरी ईयर टिल 5 years वो बच्चा न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन की निगरानी में रहता है। और उसमें रेड फ्लैग्स है हर चीज के, विजन के भी है, स्पीच के भी है, फिजिकल डेवलपमेंट के भी है, वो सारे रेड फ्लैग्स है। यदि वो रेड फ्लैग्स हमको लगते हैं तो उनको अर्ली इंटरवेंशन दिया जाता है। अर्ली इंटरवेंशन मतलब जो भी सेगमेंट है उसके डेवलपमेंट का, सपोज वो फिजिकल है, विजन है, बिहेवियर है, स्पीच है, कोई भी में यदि वो बच्चा डिले दिखता है रेड फ्लैग में, तो उसको इमीडिएटली थेरेपी में एनरोल किया जाता है। चाहे वो बच्चा 3 महीने का हो, 6 महीने का हो, 1 साल का हो, 2 साल का हो, जितनी जल्दी डायग्नोस होता है उसको वो थेरेपी हम शुरू करते हैं, जिसको अर्ली इंटरवेंशन थेरेपी बोलते हैं। वो अर्ली इंटरवेंशन स्पीच थेरेपी भी हो सकती है, कॉग्निशन थेरेपी भी हो सकती है, फिजिकल थेरेपी भी हो सकती है, ओटी थेरेपी भी हो सकती है। और वो बच्चे को जो प्रॉब्लम है वो आगे बढ़ने से हम रोके और उसको नॉर्मल के नजदीक ले आए, ताकि 3 साल तक जो नॉर्मल बच्चा सीखता है उसके साथ साथ हम बाहर से ये बच्चे को हेल्प करके सिखा दे, ताकि वो बच्चा आगे जाके प्रॉब्लम में ना आ पाए। तो उसको हम अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं। Right. Thank you so much, ma'am. With this, we'll go to another question from Mr. Gaurav Miklani. He's asking, my 3.5-year-old son has speech regression and has been diagnosed with autism. So is speech therapy and OT the only option, or there are any medication available for speech? Okay. For speech or for autism, there is no medication worldwide. Only recommended treatment for autism is ABA therapy and OT therapy combination, which you are already doing. So I think they have to continue with the same thing. There is no medicine, but sometimes these kids are so hyper that we give atomoxetine or risperidone, and that has been prescribed by the neurologist or a pediatrician. So वो आपको suggest करेंगे यदि ऐसा है तो you can give the medicine, but that is not for the autism. For autism, there is no medicine. With this, one of the parent is asking who takes ABA therapy. जो ऑटिज्म या कोई भी बीमारी हो, ADHD हो या कुछ भी हो, बच्चों के अंदर ना आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है, जो उनके कॉग्निशन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। तो अगर हम इन जनरल अगर हम उनके नेचुरल पे जो पैरामीटर्स हैं वो भी नॉर्मल रखते हैं, तो भी बच्चे बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। और थोड़ी पेरेंटिंग की टेक्निक्स हैं तो वो काफी कुछ हद तक हमारी पिक्चर को मॉडिफाई कर देती है।
बट पेरेंट्स जो सिर्फ ऑटिज्म का लेबल के लिए ही घूमते हैं डॉक्टर के पास, तो वो कोई एडवाइजेबल नहीं है। आप अपने डॉक्टर पे ट्रस्ट कीजिए, और वो जानते हैं, और जैसे वो समझाए वो फॉलो कीजिए, क्योंकि टैग लगा के तो कुछ स्पेशल नहीं होगा। और आप कई बार आपको डिमोरलाइजेशन हो जाता है इसकी वजह से कि अरे मेरे बच्चे को तो ये हो गया, और फिर आप उसके लिए जो प्रयास करने की जरूरत है, जो एफर्ट डालने की जरूरत है, क्योंकि उसकी जो बेस्ट टीचर है उसकी माँ है, उसका मोरल हाई रहना चाहिए, उसको ये पॉजिटिव रहना चाहिए कि मेरा बच्चा, मैं इसको ठीक कर लूंगी। तो इस फीलिंग से ही बच्चे ठीक होने लगते हैं। Great, sir. Thank you, doctor. And ma'am, we'll take 2 more questions today. Yeah, absolutely. My 3.5-year-old sleeps with mouth open, even while she's playing, studying, or watching TV. I observe her mouth is open. She has speech delay. However, she has started speaking or pointing and asking things after we visited the therapist. Keeping mouth open has any relation to speech delay or clear speaking? What is the solution for this? ओके, इन दिस केस एक ईएनटी ओपिनियन लेना चाहिए, क्योंकि टॉन्सिल और जो नेजल पॉलिप्स होते हैं ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है, स्पेशली जिनको बार बार कफ कोल्ड होता है, इन्फेक्शन होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसमें पॉलिप और टॉन्सिल ये दोनों बार बार हो जाने की वजह से वो बच्चे अच्छी तरह से सांस नहीं ले पाते हैं। तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम बहुत पाई जाती है कि रात को सोते समय वो मुंह खोल के सोते हैं, ताकि वो नाक से कंप्लीटली ले नहीं पाते, उनको सफोकेशन फील होता है। तो एक ईएनटी ओपिनियन लेके ये 2 चीज है कि नहीं वो क्लियर करनी चाहिए। इसमें जो नास लेना होता है अपना, जो विक्स का या फिर कोई नीलगिरी के तेल का जो होता है नास लेते हैं, वो करने से वो पॉलिप जो होते हैं वो बैठ जाते हैं। वो घरेलू उपचार में कई पेरेंट्स करते हैं और रिजल्ट भी अच्छा होता है, वो करना चाहिए। और डेफिनेटली स्पीच थेरेपी जो है वो तो चालू ही रखनी चाहिए। तो ये करने से मोस्टली ऐसा लग रहा है कि ये बच्चे में ठीक हो सकता है, लेकिन ईएनटी चेकअप ये बच्चे में मस्ट है, एक बार करवा लेना चाहिए। उसके अंदर ना एडिनॉइड्स अगर बड़े हुए हैं तो आजकल हम स्प्रे देते हैं और एडिनॉइड्स कम हो जाते हैं, क्योंकि एडिनॉइड्स के बड़े होने से भी एक ट्यूब का नाम मैम ने लिया था, स्ट्रीकिन ट्यूब कहते हैं, वो ब्लॉक हो जाती है और कान के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो जाती है। तो हो सकता है जैसे आपका बच्चा मुंह खुला रखता है, तो चांसेस ही अगर वो 4 से 5 साल का है तो 100 में से 90% मोर चांस है कि उसको एडिनॉइड्स हो, और एडिनॉइड्स की वजह से उसके ईयर के ड्रम्स पे फर्क पड़ रहा हो। तो आप उसका ट्रीटमेंट मौजूद है और बिना ही ऑपरेशन की ज्यादातर बच्चे ठीक हो जाते हैं। Right, ma'am. Ma'am, there is a question. My son is 7-year-old. He's doing abnormal movement of neck and right eye, and I consult with the pediatric, psychiatric, and neurologist. Medicine been given, multivitamin, and a few more syrups been given, like Phenergan, but there is no better relief. So this is a very specific case. Yes, yes. And we have also received few more cases, and they're also asking if they need to have a consultation through you. What is the process and where they can reach out to you? ओके, सो इस बच्चे में मुझे लगता है कि टिक्स, इसको बिहेवियरल टिक्स बोलते हैं, कि बच्चे में कभी कभी एंजाइटी की वजह से, पेरेंटिंग डेविएटेड होते हैं उसकी वजह से, स्कूल में बुलिंग ऐसे कुछ होने की वजह से आंखों का पटपटाना, मूवमेंट करना, या फिर ऐसे करना, या फिर आवाज निकालना, कुछ वो इनवॉलंटरी, पहले वॉलंटरी होता है फिर उसके बाद इनवॉलंटरी शुरू हो जाता है। तो फिर इन बच्चों में बिहेवियरल थेरेपी से पहले ठीक करने का सोचना चाहिए। इसमें मेडिसिन जो होती है सिर्फ टेम्पररी रिलीफ करती है, परमानेंट रिलीफ नहीं करती है। तो फिर वो बिहेवियर थेरेपी से वो बच्चे रिवर्स हो सकते हैं, यदि बच्चे का आईक्यू नॉर्मल है तो। यदि बच्चे का आईक्यू भी प्रॉब्लम है, डिलेड डेवलपमेंट है, और ये चीज कर रहा है जिसको हम टिक्स बोलते हैं, तो उसमें टूरेट सिंड्रोम नाम का एक सिंड्रोम होता है, वो जेन्युइन साइकेट्रिक प्रॉब्लम होता है। उसमें एंटीसाइकोटिक और बिहेवियर मॉडिफिकेशन दोनों देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस बच्चे में मुझे लगता है कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन से ठीक हो सकता है। और हमारा जो लिंक है वो सब मैं अपनी फेसबुक पे हम डाल सकते हैं, हमारे चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर का और हमारे एशियन चाइल्ड न्यूरो क्लिनिक अहमदाबाद का, या फिर गूगल में आप डॉक्टर दर्शना नायक एशियन चाइल्ड न्यूरो क्लिनिक अहमदाबाद डालोगे तो भी गूगल में भी हमारा लिंक खुल सकता है, तो दे कैन अप्रोच मी एनी टाइम। Right. Ma'am, we'll just take one more question. A Yeah, sure. one year child suffering from thyroid from the birth,
and is not developing properly or by the body structure, any specific therapy is recommended? एब्सोल्युटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो थायराइड है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। थायरॉक्सिन करके हार्मोन आता है, उसको रिप्लेस करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बच्चा अभी छोटा है तो ये एज पे थायराइड रिप्लेस करेंगे तो 3 to 6 मंथ में उसका जो भी डेवलपमेंट है वो रिवर्स होना चालू हो जाएगा। यदि नहीं होता है तो थायराइड के साथ उसको थेरेपी करते हैं। जो पार्ट में डिले है, स्पीच डिले है तो स्पीच थेरेपी करो, फिजिकल डिले है तो फिजिकल थेरेपी करो, कॉग्निशन या अंडरस्टैंडिंग डिले है तो कॉग्निशन थेरेपी करो और वो बच्चा रिवर्स हो सकता है। तो थायराइड रिप्लेस करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 50 to 60% जो उसके जो डिलेड सिम्टम्स है वो थायराइड रिप्लेस करने से ही 3 मंथ्स में रिवर्स हो जाएंगे। ग्रेट। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि थायराइड की जो डेफिशिएंसी है वो आपको कब डायग्नोज हुई, और मैं सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा और अपने जानने वालों से भी वो कहना चाहिए उनको कि हमारे यहाँ थायराइड की डेफिशिएंसी का इंसिडेंस कम नहीं है, 1 out of 2000 है। तो जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनका 3 दिन के पश्चात 72 घंटे बीतने के बाद एक बार थायराइड टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जहाँ हाई रिस्क है, जहाँ चांस ज्यादा है थायराइड होने के, वहाँ 14 दिन के बाद भी, क्योंकि कुछ केस ऐसे हो सकते हैं जो 14 दिन तक मिस हो जाए, फिर उसका एक बार और थायराइड का टेस्ट होना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप थायराइड को पकड़ लेंगे, जितना जल्दी थायराइड का ट्रीटमेंट शुरू कर लेंगे, उतना ही बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और बाकी डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा होगा। तो थायराइड का टेस्ट कंपलसरी होना चाहिए हर बच्चे का। डिलीवरी के 3 दिन के बाद TSH नाम का टेस्ट जरूर होना चाहिए। Sure. Thank you, Dr. Darshana ma'am. And still few questions are coming up, but we will park it for the subsequent session in future. Yeah, and they can email me, I will reply them. हमारे जो लिंक है एशियन चाइल्ड न्यूरो क्लिनिक का लिंक खोलेंगे, उसमें we have the email, so they can email. I will reply them on the email as well. Great. Dr. Anuj and Dr. Darshana, one question. When we are managing the children with neurological challenges, how food and nutrition add on to their value overall when we see them growing every day? So there are a lot of do's and don'ts around always. Lot of misbelief, lot of yeah, ma'am, please. Yeah, absolutely. फूड में तो मेन क्या है कि उसमें डेफिशिएंसी जो है वो करेक्ट करनी चाहिए। whenever delayed development child approaches us, we do vitamin D3 level, vitamin B12 level, iron level, hemoglobin level. We do that in all the kids having delayed development. सबसे पहले हम वो रिप्लेस करते हैं क्योंकि सप्लीमेंट प्लेज अ मेजर रोल इन रिकवरी इवन विद द थेरेपी। सपोज सिवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है और हम थेरेपी देते हैं तो बच्चा असर नहीं करता है, तो जो भी उसके साथ डेफिशिएंसी है उसको सप्लीमेंट हम जरूर करते हैं। जैसे कि थायराइड का भी अभी डिस्कशन हुआ, तो हम थायराइड रूटीनली सब डिलेड डेवलपमेंट में करवाते ही है यदि वो है, और यदि क्योंकि ये सारी चीजें ट्रीटेबल है, वो 2 और बच्चा रिस्पॉन्स इतनी अच्छे से करता है कि शायद कई बच्चों में तो थेरेपी की जरूरत भी ना पड़े, हम जस्ट होम प्लान दे देते हैं पेरेंट्स को और बच्चा ठीक हो जाता है। तो ये ट्रीटेबल रीजन तो जो भी डिलेड डेवलपमेंट के है वो तो मिस होने ही नहीं चाहिए, ना तो पेरेंट्स से ना तो डॉक्टर से। तो सबसे पहले तो वो करना चाहिए। दूसरा जो है फॉल्टी फूड हैबिट्स, बचपन से ही सपोज बच्चा खा नहीं रहा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया और बच्चा, मम्मी ठूसती रहती है मुंह में और बच्चा मोबाइल देखता रहता है, बच्चे को पता नहीं बच्चा क्या खा रहा है, उसको वो न्यूट्रिशन के बारे में कुछ समझ में ही नहीं आता। तो 3-4 साल या 5 साल तक तो यही चलता है जब तक बच्चा स्कूल जाता है कि मम्मी पूरे घर में पीछे पीछे घूमती रहती है और बच्चे को खिलाती रहती है। तो फॉल्टी फूड टेक्निक्स जो होती है, कई बच्चे को सोते सोते, कई बच्चे को वॉकर में, कई बच्चे को बाउंसर में जो सुला के उनको खिलाने की जो आदत होती है वो है। 3-4 साल के कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मिक्सर में क्रश करके देना पड़ता है, जिसके पूरे दांत आ गए, सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी वो बच्चा च्यू नहीं करता है क्योंकि उसको आदत ही नहीं है और वो बच्चा रिजेक्ट करता है। तो फिर मम्मी क्या होती है, तंग आके वो छोड़ देती है और बच्चे को हर रोज मिक्सी में पॉरिश करके ही सब कुछ, सारी चीजें, रोटी दाल चावल सब कुछ उसको मिक्सी में ही करके देती है। बच्चा ऑलरेडी 3-4 साल का हो गया है। तो सेकंड में सप्लीमेंट के बाद सेकंड में जो फॉल्टी फूड हैबिट्स होती है वो उसको रिवर्स करना बहुत जरूरी होता है और ये स्पीच डेवलपमेंट में भी बहुत काम आती है। सकिंग, ब्लोइंग, जैसे मैंने स्टेप्स बताए थेरेपी के, वो सारी चीजें यदि फूड की टेक्निक अच्छी होगी तो बच्चे का स्पीच थेरेपी में काम आने वाली है। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और थर्ड होता है पेरेंटिंग, बच्चों के साथ उनका इंटरेक्शन कैसा है, बच्चे को कैसे वो लोग ट्रीट करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
तो ये 3 चीजें ऐसी होती है कि मैं पेरेंट्स को बताना चाहती हूँ कि वो हमेशा अपने बच्चे में देखे और यदि उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो उसको रिवर्स करे। ओवर टू यू सर। जी हाँ, मैं ये कहना, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, क्योंकि जनरली माओ का जो मेल्टडाउन होता है वो इसलिए होता है कि उन्हें सब समझा के भेजा जाता है और वो चेंज करने की कोशिश भी करती है, बट पहली बार में बच्चा एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो हमने कहा टीवी बंद करके खिलाओ या मोबाइल बंद करके खिलाओ, खाने दो इनको, बट वो खाएगा नहीं, तो माँ फिर ज्यादा वेट नहीं करती, क्योंकि माँ अपने बच्चे के लिए 1 मिनट भी उसकी ग्रोथ के लिए मिस नहीं करना चाहती। और ये भावना जो है बच्चे के लिए अच्छी नहीं है। अगर आप कोई भी चीज चेंज लाना चाहते हैं तो मान के चलिए इट विल टेक फ्यू डेज, नॉट फ्यू आवर्स। आप ये सोचो एक ही दिन में चेंज हो जाएगा, तो नहीं चेंज होने वाला। जो वो करता आ रहा है और जो आप करती आ रही हैं, उन सब चीजों को चेंज करने में थोड़ा पेशेंस, थोड़ा धैर्य, थोड़ा टाइम लगता है। अगर पेरेंट्स ये बात समझ जाए, मदर ये बात समझ जाए, तो बच्चों को बहुत अच्छा किया जा सकता है। और मैं 6 मंथ की एज से जो रिकमेंड करता हूँ, बेबी लेट फीडिंग रिकमेंड करता हूँ, इसलिए हाई चेयर रिकमेंड करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो बच्चे को उस पर बैठा के खाना, पहले खिलौने रखें फिर खाना रखें, और लेट देम ईट देमसेल्फ। जब वो खुद इंडिपेंडेंटली खाते हैं, शुरू में हो सकता है उनके मुंह में खाना फंसता हो, शुरू में थोड़ा खाना बिखर जाएगा, थोड़ा शुरू में थोड़े कपड़े गंदे हो जाएंगे। Initially it is going to be messy, but it is not going to be messy forever. मैंने एक पोस्ट भी लिखी है कि एक बार में तो मम्मा ए बनाना भी नहीं आता। आप लाइन खींचते हैं और वो एकदम ए में कन्वर्ट नहीं होती। एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर हम ये समझें और हम अपने डॉक्टर को, क्योंकि वो यही काम करता है, बच्चों में रहता है, बच्चों के पेरेंट्स को एडवाइस देता है, उसकी एडवाइस को रिलीजियसली फॉलो करें, ये समझते हुए कि हाँ, आज अगर इन्होंने दूध पिलाने के लिए कम कहा है, आज इन्होंने कहा है कि टीवी देख के नहीं खाना है, टीवी बंद कर देना है, खाए तो ठीक है, नहीं खाए तो ठीक है। अगर जब तक हम ये फीलिंग रख के उसे चेंज नहीं करते तो कुछ भी चेंज नहीं होता। ये आपने भी प्रैक्टिस में देखा होगा, दिस वेरी कॉमन थिंग। आप पेरेंट्स आएंगे अगली बार, कहेंगे डॉक्टर साहब तो खाता ही नहीं कुछ, मैंने आपने जैसा कहा था वैसे ही करा था, तो कुछ खाता ही नहीं। उसके बाद तो इसने खाना ही बंद कर दिया। और वो देखिए, एक स्टोरेज बॉडी है हमारी, एंड अगर हम कुछ दिन कम खाते हैं तो बाद में ज्यादा खाते हैं तो वो रिप्लेस हो जाता है। आई थिंक आप कुछ डॉक्टर दर्शना ऐड करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। नो सर, आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट। क्वेश्चन भी काफी हमने कवर कर लिए हैं। जी हाँ, Absolutely, ma'am. And thank you so much for giving your valuable time today. And Dr. Anu sir, thank you so much once again. And ma'am, it looks like people are looking forward to hear you sometime in future as well, maybe with a different topic. Absolutely, we will. Yeah. Thank you so much, Dr. Darshana. Yeah, And yeah. all the audience, you have any question, please post it at info@imthebestform.com. We'll pass it on to Dr. Darshana, and you can you have all the access. Thank you so much. Have a wonderful day ahead. Thank you, sir. थैंक यू दीपक, थैंक यू Thank you, डॉक्टर। sir. Thank you.